Welcome to all students in my class. In my previous class, as you know that we have discussed yesterday about the differences of model auxiliaries and primary auxiliaries. In my previous class, I have also told that model auxiliaries are the group of those auxiliaries which are unaffected with the number and persons of a noun of a subject, while the primary auxiliaries are those auxiliaries which are used according to the number and persons of a noun or a subject. After that discussion, I have discussed with you yesterday in my class about the use of can. I have told you that the use of can is made for the request, permission, capability, capacity, etc. Today in my present class, as you are noticing on the board, that there is a heading use of could, may, might, would, should, must, ought to. We are going to discuss here about the use of these models. So first of all, I want to take here the model must. The model could, first of all, I want to take could. Use of could. Okay, first of all, I want to tell you about the rules of it. That can, yesterday I have told you, can plus first form is used in present tense, while could is used in past tense. So we should understand here the past tense of could is, the past tense of can is could. Could, here we use the rule subject could, first form of the verb and object. On this rule we will make it. Okay, in negative sentence we use the rule could not, first form of the verb plus object. In interrogative sentence, if, क्या, क्या वर्ड हिंदी सेंटेंस के शुरू में आता है? अगर हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या वर्ड दिया होता है तो हम कुड को स्टार्टिंग में यूज कर देते हैं. कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. नॉट इफ गिवन, अगर दिया हो तो नॉट का यूज करते हैं, अदरवाइज नॉट का यूज नहीं करते हैं. आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, first form of the verb and object, question mark. In second type interrogative, if question word is given in the middle of Hindi sentence, middle of Hindi sentence means what, why, where, it means कब, कहाँ, कौन, कैसे आदि कोई वर्ड आता है हिंदी सेंटेंस में, तो सबसे पहले यहां पर हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यूज करते हैं. क्वेश्चन वर्ड प्लस कोड सब्जेक्ट. इफ नॉट इज गिवन इन द सेंटेंस we will use, otherwise there is no need to use of it. First form of the verb and object, question mark. It is the rule of use of models. In all models these rules are, only model is changed, otherwise the rules are the same. Now we will understand it, the use of it with the example of with the help of example. For example, you can understand here, Kishore could swim in his youth. अगर हम यहाँ देखें, किशोर
could swim in his youth. तो could past tense and verb की first form. Could swim. In this what we have shown? कैपेबिलिटी और एबिलिटी. हमने उसकी एबिलिटी को, उसके पावर को शो किया है कि उसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि वह स्विम कर सकता है. तो इसमें हमने क्या शो किया है? इसमें हमने उसकी कैपेसिटी को शो किया है. ठीक है. अगर आप देखें रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट में आप देखें यहां पर हमने क्या इसके कैपेबिलिटी को शो किया है. कैपेबिलिटी को हमने यहां पर शो किया है. कैपेसिटी हम इसको कह सकते हैं. देखिए हम रिक्वेस्ट के सेंस को अगर आप देखें तो रिक्वेस्ट के सेंस में हम क्या करेंगे, यहां पर हमें देखना है Would you lend me some money? Could you lend me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो? अगर कोई आकर के मुझसे कहे ए पैसा उधार दे जरा मुझे, तो क्या मैं उसे पैसा दूंगा? मैं उसे कहूंगा भाई अपने मैं नहीं दे रहा हूं, कहीं और से ले ले. अगर मुझसे आगे कहेगा कि क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं, तो अब उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है तो मैं उससे पैसा उधार देने की बात कर सकता हूं. तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ, तो देखिए कोड यहां पर स्टार्टिंग में यूज हुआ लैंड मी सम मनी. है तो इंटरोगेटिव फॉर्म में, लेकिन यहां पर इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या यूज किया गया है, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट यूज की गई है. क्या यूज की गई है? पोलाइट रिक्वेस्ट. ठीक है. रिक्वेस्ट यहां पर शो की गई है. आप यहां पर समझ सकते हैं कि क्या यूज किया गया है. यहां पर रिक्वेस्ट का यूज किया गया है. आप यहां पर बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं. देखिए नेक्स्ट इसमें आपको मैं जैसे पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, इस चीज के बारे में, जैसे आई थिंक you could run a race. You could run a race. I think you could run a race. मैं मेरे विचार से या मैं समझता हूं कि तुम एक रेस को दौड़ सकते थे. एक रेस को दौड़ सकते थे. दौड़ सकते, तुम्हारे अंदर पावर तो थी, तुम दौड़ सकते थे. इसका मतलब पॉसिबिलिटी यहां पर पाई जा रही है. क्या पाया जा रहा है यहां पर? पॉसिबिलिटी. पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी. देखिए पास्ट टेंस में ये किस चीज में यूज है कुड का? पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस कैन का पास्ट टेंस कुड होता है. अगर हम पास्ट टेंस करना चाहते हैं तो कैन को कुड कर देते हैं, पास्ट टेंस हो जाता है. ठीक है. बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चलती है. यहां पर कुड रन ए रेस, ये पॉसिबिलिटी है केवल यहां पर, और इससे आगे कुछ नहीं है. अगर हम नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे? couldn't you break the ice? couldn't you break the ice? अब आप देखिए couldn't you break the ice, ये नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव कैसे? could not की शॉर्ट फॉर्म है couldn't. अगर हम could not पूरा यूज करते हैं यहां पर तो आप देख सकते हैं. देखिए और करके मैं आपके सामने यह राइट कर रहा हूं. अगर आप इसको नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो could you not break the ice? देखिए शॉर्ट फॉर्म अगर है तो यहीं पर couldn't कर दिया है, और शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ओपनली लिखना चाहते हैं तो यहां पर नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज होता है.
क्लियर, सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। इन दिस वे आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द यूज ऑफ कुड। मैं समझता हूं कि आपको कुड का यूज समझ में आया होगा। क्लियर, अगर आपको समझ में आया है तो बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप इसको देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं। इससे आगे मैं आपको यूज करने के लिए बता रहा हूं मे का यूज मैं आपको यहां पर बताऊंगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, you have taken. Yes. Now, next part I am going to tell you. नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आता है यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे और माइट। नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आता है यूज ऑफ मे और माइट। मे और माइट, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज द प्रेजेंट फॉर्म एंड इट इज द पास्ट फॉर्म। यहां पर सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका भी सेम रूल ऐसा ही होता है। देखिए, इसका जो यूज होता है वो सब्जेक्ट रूल है मे और माइट। क्लियर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, सेम रूल है, बस ये आपको चेंज करना होता है मॉडल से, बाकी सभी का रूल एक जैसा होता है। नेगेटिव में आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट में और माइट। शॉर्ट फॉर्म में आपको इसमें लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव अगर आप देखें तो वे सेंटेंस इन हिंदी वाक्यों में क्या वर्ड शुरू में आता है, क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, इसमें हम मॉडल को स्टार्टिंग में यूज कर देते हैं मे और माइट। माइट प्लस सब्जेक्ट नॉट अगर दिया हो सेंटेंस में तो हम नॉट का यूज करते हैं, अदरवाइज नॉट का यूज नहीं करेंगे। नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, दैट इज नेसेसरी। क्वेश्चन मार्क, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, अगर हिंदी सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन की बात करें, अगर हम हिंदी सेंटेंस की ट्रांसलेशन बना रहे हैं और उस हिंदी सेंटेंस के मिडल में क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि वर्ड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को सबसे पहले रख देना होगा। क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट मॉडल मे और माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव वर्ड अगर दिया हो तो ये ऑप्शनल होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलें। ऑब्जेक्ट, दीज आर द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए हम इन रूल्स का यूज करते हैं। ये बहुत ही ध्यान से हमें इन रूल्स का यूज देखना होगा।
यही हमारे लिए पूरा बेस होता है, फाउंडेशन होती है किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए। बस जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं या प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, बाकी सेम रहता है। इसी तरह से आप देखिए पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट आदि को शो करने के लिए मे और माइट का यूज होता है। मे का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में और माइट का यूज होता है पास्ट टेंस में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप यहां समझ सकते हैं इट मे रेन टुडे। एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ सकते हैं इट मे रेन टुडे। अब आप यहां पर देखिए इट मे रेन टुडे, आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉपरली इट मे रेन टुडे। देखिए मे का यूज हुआ है यहां पर और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, क्या चीज इसमें हम शो कर सकते हैं? इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। हो सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या शो की गई? पॉसिबिलिटी। क्लियर? इसमें क्या शो किया गया है? पॉसिबिलिटी को शो किया गया है। ठीक है, इससे आगे आप देख सकते हैं कि यहां पर हम समझ सकते हैं नेक्स्ट, अगर आप एग्जांपल देखें तो परमिशन के रूप में भी हम, जैसे अक्सर एक सेंटेंस बोला करते हैं स्टूडेंट, क्लास में आकर के बोला करते हैं, जैसे बाहर से आ रहे हैं तो क्लास में एंटर होने के क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर। मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई कम इन सर, ये बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? मे आई कम इन सर। तो जब बोलते हैं तो क्या क्या पाया जाता है इसमें? जब स्टूडेंट बोलता है मे आई कम इन सर तो क्या पाना चाहता है? परमिशन। क्या पाना चाहता है? परमिशन। तो यहां पर मे आई कम इन सर, इसका मतलब परमिशन। यहां पर क्या हुआ? परमिशन यहां पर उसने पाई है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल देते हैं कैन आई कम इन सर। कैन आई कम इन सर का मीन्स होता है कि वो बहुत अधिक पोलाइट नहीं है, वो पूछ रहा है आपसे, परमिशन ले रहा है, लेकिन अगर वो चाहे तो अंदर एंटर हो जाएगा। फॉर्मेलिटी निभा रहा है, फॉर्मेलिटी निभा रहा है बस। और मे का मतलब है कि अगर आप सर मना करते हैं तो मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा, और कहते हैं तो मैं अंदर आ जाता हूं। तो यहां पर क्या है? परमिशन शो की जा रही है इस तरह से। इससे आगे आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा हिंदी में कहते हैं कि भगवान आपको दीर्घजीवी बनाए, भगवान आपको लंबी आयु दे। जब बुजुर्गों को हम नमस्ते करते हैं तो बुजुर्ग क्या कहते हैं कि भगवान आपको बहुत बड़ा कर दे, भगवान आपको लंबी आयु दे। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं, अगर हम कहें मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी हम लगा देते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क ही आता है क्योंकि इसमें क्या किया गया है? आशीर्वाद, ब्लेसिंग किया गया है। ब्लेसिंग किए जाने के लिए जैसे प्रे हो गई, विश हो गई, होप हो गई, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, हमने यहाँ पर देखिए आपको क्या ब्लेसिंग किया है। तो चाहे तो आप कह दीजिए प्रे, भगवान से प्रार्थना करिए भगवान आपको लंबी आयु दे, या मैंने आपके लिए शुभकामनाएं की हैं, होप की है, आशा की है मैंने आपके लिए कि आप अच्छे हों। ठीक है, तो मैंने अपने मन से आपको विश किया है। इस तरह से इन सेंसेस को हम इसमें क्लियर कर सकते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। क्लियर? रिक्वेस्ट भी आप यहां पर देखिए, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कहीं आप गए, आपको कॉफी पीनी है, कॉफी रखी हुई है और भी 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपका मन बहुत ज्यादा कॉफी पीने के लिए करा, उनसे पहले ही कॉफी आप पीना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं कि मैं कॉफी पी लूं,
ऐसा कहेंगे तो आपको कोई ना कोई मना कर ही देगा, लेकिन एक सभ्य तरीके से अगर आप वहां पर बोलना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, मे आई हैव सम कॉफी। मे आई हैव सम, मे आई हैव सम क्या, कॉफी। देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन तो हमने किया, क्वेश्चन तो हमने किया, लेकिन किस सेंस में, मे आई हैव सम कॉफी। पोलाइटली हमने वहां पर क्या किया है, एक तरह से उनसे क्या किया है, परमिशन भी ले रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम उनसे क्या ले रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और परमिशन भी हम यहां पर ले रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन, पोलाइट परमिशन भी हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, मे आई हैव सम कॉफी, क्या मैं कुछ कॉफी ले सकता हूं, क्या मैं कुछ कॉफी पी सकता हूं। इस तरह से हम यहां पर यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेगेटिव, जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस है, इट मे नॉट रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे। यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर नेगेटिव वर्ड मे नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। नेगेटिव वर्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर यूज हुई है। आप यहां पर क्लियरली नोटिस कर रहे होंगे। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, मे नॉट, माइट नॉट। ठीक है, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। बेटा यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर, इट इज द प्रेजेंट may use, I am going to tell might, use of might I am going to tell. Okay, you can take a screenshot. Yes, now here might, use of might, ये प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको यूज बताया, अब मैं आपको माइट का यूज बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से इसी सेंस में माइट का यूज होता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझ लें। देखिए पॉसिबिलिटी को अगर आप देखें तो ही माइट कम नाउ, अगर आप कहें ही माइट कम नाउ, ही माइट कम नाउ, वह यहां पर आ सकता है, आ सकता था। ठीक है, यहां पर था आएगा, वह यहां पर आ सकता था, पॉसिबिलिटी थी, कंपल्सन कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी थी। ही माइट कम नाउ, अब आ सकता था, अब यहां पर आ सकता था या अब आ सकता था। ठीक है, अगर आप देखें यहां पर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो माइट को शुरू में रख सकते हैं। ठीक है, माइट को आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे इंट्रोगेटिव है, माइट यू स्टार्ट इट नाउ, तुम अब इसे स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे, तुम अब यह स्टार्ट कर सकते थे। माइट यू स्टार्ट इट नाउ, तुम अब इसे स्टार्ट कर सकते थे, इसका मतलब वो समय बीत चुका है, पास्ट टेंस हो चुका है। ठीक है, इससे आगे आप फ्यूचर का एक्सप्रेशन भी इसमें शो कर सकते हैं, जैसे दे माइट बाय ए न्यू हाउस, दे माइट बाय अ न्यू हाउस।
अगर आप देखें, दे माइट बाय अ न्यू हाउस, वे एक नया घर खरीद सकते थे। ठीक है, न्यू हाउस यहाँ पर देखिए फ्यूचर में भी खरीद सकते हैं, खरीद सकेंगे, तो यहाँ पर माइट जो है फ्यूचर को भी शो कर रहा है, माइट। सिंपली आप इसको याद रखिए कि ये पास्ट टेंस में माइट का यूज किया जाता है, लेकिन फ्यूचर रेफरेंस को भी हम कभी कभी यहाँ पर जोड़ देने के लिए शो कर सकते हैं। ठीक है, माइट की अगर आप नेगेटिव फॉर्म देखें तो यू आप यहां पर समझ सकते हैं नेगेटिव फॉर्म को, यू माइट, ये शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है वेट you might wait for him, wait for him। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए जो माइट नॉट है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है माइट नॉट। इस माइट नॉट की शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, इसी तरह से मेंट की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, इसी तरह से यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं तो माइट को हम स्टार्ट में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसके यूज को समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली द यूज ऑफ कोड मे माइट। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। नाउ you can take a screenshot beta. I will go to use of would, should and must. Perhaps video will become more in time. So today maybe that we should not understand here use of must or to. Yes, have you taken a screenshot? Yes, okay. Okay. चलिए बेटा, we are going to next use of सेम रूल मस्ट में भी होंगे। ओके, कि हमने इसमें कौन कौन सा यूज किया? अभी हमने देखे फूड का यूज किया, वी हैव डन, वी हैव डन, वी हैव डन। नाउ वी आर गोइंग टू यूज एयर, अबाउट द यूज एयर वुड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज वुड, यूज ऑफ वुड। वुड, वुड वर्ड का हम यहां पर यूज करेंगे। वुड, विल का पास्ट टेंस वुड कहा जाता है। क्लियर? नेगेटिव में इसको वुड नॉट, वुडंट शो करते हैं, और विल के जो पास्ट फॉर्म है यहां पर वुड किया जाता है। देखिए वुड का यूज हम कहां पर करते हैं? वुड का यूज हम विलिंगनेस, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, किसका यूज? विलिंगनेस को शो करने के लिए, विलिंगनेस, पॉसिबिलिटी के सेंस में भी आता है, विलिंगनेस के सेंस में आता है, पॉसिबिलिटी के सेंस में आता है। आप यहां पर समझ सकते हैं रिक्वेस्ट भी इससे की जाती है। रिक्वेस्ट भी हम इसमें कर देते हैं, परमिशन के रूप में भी इसको हम यूज कर देते हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और विश भी हम इससे कर देते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, विश, विश को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
विश एटसेट्रा, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? अब मैं आपके सामने देखिए एग्जांपल की सहायता से इसको बताना चाहूंगा। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई यूज, वुड यू माइंड इफ आई यूज, क्या यूज करता हूं? इफ आई यूज योर पेन, योर बुक, योर बाइक, योर बुक, वुड यू माइंड। ठीक है, क्या आप इसको माइंड करेंगे यदि मैं तुम्हारी बुक यूज कर लेता हूं, तुम्हारा पेन यूज कर लेता हूं, तुम्हारी बाइक यूज कर लेता हूं? क्या आप इसको माइंड करेंगे? यहां पर क्या है? विलिंगनेस हो रही है। ठीक है, इसमें आप क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम यहां पर परमिशन को भी ले सकते हैं, जैसे वुड यू, ठीक है, परमिशन के सेंस में हम इसको ले सकते हैं क्या? वुड यू लाइक सम मोर टी, वुड यू लाइक, रिक्वेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं सम मोर टी, पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या आप कुछ और चाय पीना पसंद करेंगे? ठीक है, क्या आप कुछ और चाय पीना पसंद करेंगे? अगर कोई मुझसे कहे मैं कहीं पर जाके बैठा या आप कहीं पर जाकर बैठे और आपने एक कप चाय आपने ले ली है, तो क्या दूसरा कहे ओए एक कप और ले, आप पियेंगे चाय? और अगर वो कह रहा है क्या आप एक कप चाय और लेना पसंद करेंगे, तो आप एक आध बार मना करेंगे, फिर रिक्वेस्ट है, पोलाइटली आपके सामने बोल रहा था, आप कहें ठीक है थोड़ी सी कर देना, पूरा कप तो मत भरना, थोड़ी सी कर देना। तो इसमें क्या है? आपने अपनी विलिंगनेस भी शो की चाय पीने की, और उसने आपसे रिक्वेस्ट की है। ठीक है, इस रिक्वेस्ट के सेंस में उसको हमने यूज किया है। आप देखिए विश को कभी कभी हम बहुत एक्सप्रेस करते हैं, ऐसी इच्छाएं जो बहुत अधिक हम मतलब कंप्लीट नहीं हो सकती। वुड दैट आई वर ए किंग, अगर हम कहें वुड दैट आई वर ए किंग, वुड दैट आई वर अ किंग, ऐसी इच्छा जिसको हम फुलफिल नहीं कर सकते, ऐसी विश जिसको हम फुलफिल नहीं कर सकते, उसमें आई के साथ वर का यूज होता है, ही के साथ वर का यूज होता है, यू के साथ वर का यूज होता है। यहां पर इस ऐसी विश को करने के लिए वर का यूज किया जाता है एक्सक्लेमेशन के सेंस में। काश, काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता। अब राजा मैं बन तो जाऊंगा नहीं, लेकिन इच्छा तो कर रहा हूं ना, काश मैं राजा होता। तो ये क्या है? मेरी ऐसी विश है जो मैं फुलफिल नहीं कर सकता। हिंदी में तो कहेंगे काश, काश मैं राजा होता, काश मेरा घर गंगा जी के किनारे होता, इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी फुहारे महसूस करता, काश। तो यहां पर वुड दैट आई वर ए हाउस ऑन द बैंक ऑफ गंगा जी। क्लियर? इस तरह के सेंस में हम वुड का यूज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने देखिए 3 मॉडल्स बचे हुए हैं। कौन सा? शुड, मस्ट और टू। टुडे आई वांट टू स्टॉप हियर to this class, and we will discuss here next in my tomorrow's class use of should, must और ought to। मैं इसको आपको ये बता दूं, चाहिए के सेंस में इसका यूज होता है, चाहिए, चाहिए के सेंस में इनका यूज होता है। मैं आपको शुड, मस्ट और टू का यूज अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको
समझाऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने आज आपको यूज बताया है ये आपको समझ में आया होगा। आप रोज मेरी इस क्लास को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए। आई होप दैट यू विल लाइक इट, you will subscribe it, and you will encourage me to do something more to create such kinds of more and more videos, more and more classes on my channel. Thank you students, thank you, have a nice day. I want to stop here my class. Thank you, have a nice day, thank you very much, bye.